हाज़रीन किराम, शोबे उर्दू कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से मुनक़िद किए जा रहे इस महफिल में जो मुनक़िद की जा रही हैं, आप सभी का खैर मक़दम है। हाज़रीन किराम, जैसा आप सभी लोग वाकिफ़ हैं कि आज एक अफ़सानवी मजमूए की रस्म इजरा का एहतमाम किया गया है। इस सिलसिले में दानिशवर हज़रात, तलबा और तालिबात, रिसर्च स्कॉलर्स हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा है। आज की ये महफिल जो है, इसकी सदारत बनफ्स नफीस कश्मीर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर निसार अहमद मीर साहब फरमा रहे हैं। हम तहे दिल से उन्हें गुजारिश उनसे करते हैं कि वो मसनद सदारत को इज़्ज़त बख्शें। ऐवान सदारत में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब शोबे उर्दू के सदर प्रोफेसर एजाज मोहम्मद शेख साहब भी तशरीफ़ फरमा है। साथ ही डायरेक्टर रेडियो कश्मीर, साबिक डायरेक्टर रेडियो कश्मीर जनाब सैयद हुमायूं कैसर साहब भी शहनशीं पर तशरीफ़ फरमा है। अगरचे इस हाल का मामला ये है कि यहाँ शहनशीं कहीं ऊंचाई पर नहीं है। इस तरह मसावात का जो दर्स हम किताबों में पढ़ते हैं, उसका अमली मुजाहिरा आप देख रहे हैं। लेकिन ऐसी महफिल में एक ऐवान सदारत तश्कील जब दिया जाता है तो रब्त व ज़ब्त का एहतमाम रहता है। इस महफिल में इल्म व अदब से ताल्लुक़ रखने वाली एक कहकशां है उदबा की, शुअरा की और जश्नगाने इल्म की। इससे पहले कि आज की महफिल के बारे में कोई बात हो, चूँकि किताब का मामला है, किताब को रिलीज़ करना है और दुनिया की सबसे अजीम किताब कुरान पाक है। अगर कुरान पाक की कुछ आयतों की तिलावत का शर्फ हासिल किया जाए तो इंशाअल्लाह ये महफिल जो पुररौनक भी होगी, नूरानी भी होगी। इसलिए दीगर बातों से पहले मुझे हम सभी का ये वतीरा हमारा रहा है, हमारे समाज का, कि इन पाक कलिमात से ही हर महफिल की इब्तिदा होती है। शोबे उर्दू के सेमेस्टर 4 के तालिब इल्म अबुल हशीम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। आपसे गुजारिश है वो आकर तिलावत कलाम पाक का शर्फ हासिल करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عباده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا
إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على أعصارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا فضربنا على أعذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أيها الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العظيم. کتابیں جو ہماری زندگی کو مختلف رنگوں سے مزین کرتی ہیں، ایک کتاب کی رسم اجرا ہے. تو ہمارے یہاں کے رسم و رواج اور ہمارے یہاں کی ٹریڈیشن روایت کے اعتبار سے ہم چاہیں گے کہ ایوان صدارت میں جو تشریف فرما ہمارے مہمانان گرامی قدر تشریف فرما ہے، آپ کا خیر مقدم ہم پھولوں کا ایک تحفہ پیش کر کے بہت شکریہ. میرے سامنے کچھ آشنا چہروں کی، کچھ آشنا ناموں کی اور کچھ لوگ، کچھ افسران، کچھ علم دوست حضرات جن سے میں آشنا نہیں ہوں. آج کل جس طرح سے کتابیں کم، کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کے شیشوں سے، بڑی حسرت سے تکتی ہیں. کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کے شیشوں سے، بڑی حسرت سے تکتی ہیں. مہینوں اب ملاقاتیں نہیں ہوتی. جو شامیں ان کی صحبت میں کٹا کرتی تھیں اب اکثر گزر جاتی ہیں کمپیوٹر کے پردوں پر. جو شامیں ان کی صحبت میں کٹا کرتی تھیں اب اکثر گزر جاتی ہیں کمپیوٹر کے پردوں پر. بڑی بے چین رہتی ہیں، بڑی بے چین رہتی ہیں کتابیں. انہیں اب نیند میں چلنے کی عادت ہو گئی ہے. بڑی بے چین رہتی ہیں کتابیں، انہیں اب نیند میں چلنے کی عادت ہو گئی ہے. جو قدریں وہ سناتی تھیں کہ جن کے سیل کبھی مرتے نہیں تھے، وہ قدریں اب نظر آتی نہیں گھر میں. جو رشتے وہ سناتی تھیں وہ سارے ادھڑے ادھڑے ہیں. کوئی صفحہ پلٹتا ہے تو ایک سسکی نکلتی ہے، کوئی صفحہ پلٹتا ہے تو ایک سسکی نکلتی ہے. کئی لفظوں کے معنی گر پڑے ہیں. شکریہ. کئی لفظوں کے معنی گر پڑے ہیں. بنا پتوں کے سوکھے ٹنڈ لگتے ہیں وہ سب الفاظ جن پر اب کوئی معنی نہیں اگتے. سبحان اللہ. بنا پتوں کے سوکھے ٹنڈ لگتے ہیں وہ سب الفاظ جن پر اب کوئی معنی نہیں اگتے.
बहुत सी इस्तलाहें हैं जो मिट्टी के सुकूनों की तरह बिखरी पड़ी हैं, गिलासों ने उन्हें मसरूफ कर डाला। ज़बान पर जायका आता था जो सफ़ा पलटने का। ये जो सुभान सुभान। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके, क्या बात। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके, किताबें मांगने गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। उनका क्या हुआ जाने। की शक्ल दी तो हमारे लिए लाजमी बनता था शोबे उर्दू के लिए कि ऐसे मुसन्निफीन की हौसला अफजाई की जाए। यही एक और इस दौर में जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, इस दौर में यही एक हमारा जज्बा है कि अगर उर्दू जैसी मीठी ज़ुबान को आज भी गैर उर्दू वाले गले लगा रहे हैं तो ये हमारे उर्दू के लिए और हमारी तहजीब के लिए खुशबख्ती है। एक चीनी मकोला मुझे याद आ रहा है कि जहाँ कहा जाता है कि अगर 2 दिन तक किसी किताब का इंसान मुताला न करे तो तीसरे दिन उसकी गुफ्तगू में वो शीरीनी बाकी नहीं रहती। अल्लाह करे कि किताबें पढ़ने का ये शौक़ और ये ज़ौक़ हम में पैदा हो और जिनमें है वो उसमें मज़ीद इजाफ़ा हो। मैं इससे पहले कि किताब की ये जो आज की रस्म इजरा का एहतमाम किया गया है, अगर हम एकदम से कर लें तो सारी महफिल जो है इसका मज़ा कम हो जाएगा। मैं आपकी समाअतों का इम्तहान तो नहीं लेना चाहूँगा, अलबत्ता कुछ वक्त कुछ और बातें हैं कि जो किताब से पहले जिनका आप तक पहुँचाना ज़रूरी है। एक अहम चीज़ ये होगी कि किताब पर 5 या 4 मिनट का एक रिव्यू, एक तबसरा आप तक हमने उसके लिए जहमत दी है। लेकिन इस सबसे पहले बात वही है कि मेरी वज़ाहत में और मेरी बिसात इतनी नहीं कि मैं ऐसे तमाम दानिशवरान और अहले इल्म हजरात का फ़र्दन इस्तक़बाल कर सकूं, और ये फ़र्ज़ जो है ये ख़ुद सदर शोबे उर्दू प्रोफेसर एजाज मोहम्मद शेख अदा करेंगे। मैं आपसे मुल्तमिस हूँ मेहमानों का इस्तक़बाल भी करें और इस हवाले से साथी महफिल डॉक्टर निसार अहमद मीर साहब, रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। जैसा कि मुश्ताक साहब ने कहा कि डॉक्टर माजिद ज़मान बाद में हमारे साथ शमूलियत करेंगे। शकील मकबूल साहब, एडिशनल कमिश्नर स्टेट। साकिब यूसुफ साहब, चीफ एरिया मैनेजर कश्मीर रेलवेज़। सलमान काजी साहब, डायरेक्टर दूरदर्शन। प्रोफेसर डॉक्टर खुर्शीद, HOD माइक्रोबायोलॉजी। सैयद हुमायूं कैसर साहब, एक्स डायरेक्टर रेडियो कश्मीर। मिस्टर ताहिर वानी साहब, स्टेट ऑफिसर हैं ये यहाँ पर हमारे साथ। डायरेक्टर फाइनेंस कश्मीर यूनिवर्सिटी। हाजी बशीर साहब, अब्दुल-रशीद हांजोरा साहब, चेयरमैन उर्दू काउंसिल। प्रोफेसर शौकत अहमद शाह, डायरेक्टर डिस्टेंस एजुकेशन। प्रोफेसर मुश्ताक साहब, प्रोफेसर ला यहाँ डायरेक्टर डिस्टेंस एजुकेशन। प्रोफेसर तौसीफ रिजवी साथ की महफिल में हैं। डॉक्टर यूनुस साहब जिनकी किताब की रस्मी रुनमाई हो रही है, और ख़ासकर मास्टर मोहम्मद अकबर डार साहब जो इनके वालिद गिरामी हैं, वो भी तशरीफ़ फरमा है। महफिल में मौजूद बाकी असातिज़ा किराम, रिसर्च स्कॉलर्स और तलबा, आप सबकी खिदमत में मेरा खुलूस भरा सलाम। मुश्ताक साहब ने पहले ही जो कहा कि डॉक्टर साहब तिब से ताल्लुक़ रखते हैं। जब इन्होंने शोबा के साथ राब्ता किया तो इन्होंने अपना नाम फ़ोन पे बताया कि मैं डॉक्टर यूनुस अहमद डार साहब आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो मेरी नज़र चूँकि यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है तो मैं समझ गया कि PhD डॉक्टर हैं, लेकिन इस्तिफ़सार के बाद पता चला कि ये मेडिकल डॉक्टर हैं, MBBS की बाज़ाब्ता डिग्री है और इस वक्त वही फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। तो मेरा तजस्सुस बढ़ा कि एक मेडिकल डॉक्टर जो तिब से ताल्लुक़ रखते हों और फिर अदब के साथ इनका क्या ताल्लुक़ है।
کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو دو بالکل مختلف متضاد شعبے، ایک بالکل جس کو ہم بولتے ہیں سائنس، پریکٹیکل سائنس، اور دوسرا ادب، دو الگ دنیایں، دو الگ شعبے، ایک میں معروضی دنیا 2+2=4 اور دوسرا صرف تخیل، امیجنیشن. تو اس انداز سے مجھے کیوریاسٹی بھی بڑھی، اور ساتھ ہی میں نے اسی وقت ان کو بولا کہ انشاءاللہ ہم نے ذمہ واری بولا کہ ہم اس کو انشاءاللہ ریلیز کر لیں گے. جو مشتاق صاحب نے بولا کہ ہمارا فرض بنتا تھا کہ ایک میڈیکل ڈاکٹر اگر کوئی کتاب لکھ رہے ہیں اردو میں، ادبی نوعیت کی کتاب، تو ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اور اگر شعبہ اردو ایک پلیٹ فارم ایسے افراد کے لیے فراہم نہ کرے تو پھر کون کر سکتا ہے. تو یہ ذمہ واری سمجھ کے ہم نے ان کو وعدہ کیا کہ آپ کی کتاب کی رسم رونمائی، رسم اجرا انشاءاللہ شعبہ اردو کے اسٹیج پر ہوگی. ہونا یہ تھا کہ ہم نے طے کیا تھا دسمبر میں، لیکن کچھ بوجہ یہ نہیں ہو پایا اس ٹائم، لیکن اللہ نے آج کا دن چنا تھا. تو میں بات کر رہا تھا کہ دو معروضی دنیا ہیں کہ الگ الگ میں لسانیات کا بیسیکلی طالب ہوں. تو لسانیات میں ہم بولتے ہیں کہ جب زبان کی بات کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے تکلمی زبان جس کو ہم سپوکن لینگویج بولیں گے، دوسرا ہوتا ہے تحریری زبان جس کو ہم بولتے ہیں ریٹن لینگویج. اور پھر ریٹن لینگویج میں بھی ہم دو کلاسیفیکیشن کرتے ہیں، ایک جو ادبی زبان ہوتی ہے اور دوسری غیر ادبی زبان. کیونکہ ادبی زبان جو ہے اس کی اپنی کچھ خصوصیات ہوتے ہیں، اس کے اپنے کچھ ڈسٹنکٹیو فیچرز ہوتے ہیں جو اس کو الگ بناتے ہیں، جو ہماری کامن زبان لینگویج ہو یا جو کسی بھی جرنلزم کی یا کوئی بھی زبان ہو دوسری. اس میں ہم کو معلوم ہے کہ فگریٹو ہے، علامتی ہے، تشبیہات، استعارات سے بھرپور ہوتی ہے. تو اس حیثیت سے بھی میں نے ابھی کتاب نہیں دیکھی ہے، لیکن میں جب سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ دیکھیں کہ یہ جب انتخاب کرتے ہوں گے الفاظ کا، تو میڈیکل شعبے سے اگر آپ دیکھیں گے، انہی کی ٹرمینالوجی میں بات کروں گا کہ جیسے ہمارے پاس ہے دل یا جگر، تو میڈیکل شعبے میں سمپل ہے کہ دل اور جگر جو دو آپ کے پاس اعضاء ہیں، آرگنز ہیں، یہ لوگ وہی ڈائسیکشن وغیرہ ان کا کام رہتا ہے. لیکن جب اسی لفظ کو یہ آپ ادبی دنیا میں استعمال کرتے ہوں گے تو ٹوٹل ایک دوسری دنیا بن جاتی ہے. وہ مجھے یاد آتا ہے اس وقت کہ جس کو بولتے ہیں کہ جسے جگرے لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. اسی طرح جیسے درد لفظ ہے تو ان کی کا کام یہ کہ تشخیص کرتے ہیں مریضوں کا کہ کیا بیماری ہے، اور پھر اس کی دوا بھی کرتے ہیں. لیکن اب میر کا شعر دیکھ لیجئے آپ کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. تو میں بھی واقعی میرا اشتیاق بڑھ رہا ہے کہ ان کی یہ پڑھوں. ریسنٹلی ایک جگہ ایک محفل کا انعقاد ہوا تھا، وہاں ہمارے بہت کم لوگ ہیں ایسے جو میڈیکل پروفیشن کے ساتھ وابستہ اور پھر ادب کی دنیا میں آئے. ہمارے بھی کینیڈا سے ایک آئے تھے، بہت ہی ریناؤنڈ ہے، ان کا میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں، ڈاکٹر تقی عابدی صاحب. تو کینیڈا میں ہے، وہ وہاں انکالوجسٹ ہے، مشہور انکالوجسٹ. لیکن اردو ادب کے ساتھ وہ اس وقت وزٹنگ پروفیسر ہیں پاکستان کی کئی یونیورسٹیز میں، اور ہماری یہاں جموں یونیورسٹی میں بھی ہیں، حیدرآباد میں ہیں. 70 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. اور کشمیر میں بھی دور مت جائیں ہم کہ ہمارے پاس ڈاکٹر نذیر مشتاق صاحب ہیں، تو ان کا کالم بھی آتا تھا کشمیر عظمیٰ میں. تو مہمانان کا فردن فردن نام لے کر شکریہ ادا کیا، اور اس طرح میرا کام آسان ہوا، اور یوں سمجھے کہ میری کم علمی کی انہوں نے لاج رکھی. البتہ مجھے ابھی نظر پڑی کہ میرے دوست طاہر وانی صاحب بھی تشریف فرما ہے. آپ کا بھی خیر مقدم ہے کہ یہ دوستی کا حق ہے. کتابیں جو آج کل گلزار نے کہا کہ بند الماری کے شیشوں سے جھانکتی ہیں، لیکن ہماری آج کی کتاب ابھی الماری کے شیشوں کے اندر قید نہیں ہوئی ہے. ابھی کچھ کاپیز آپ کے سامنے ریلیز ہوں گی، اور کچھ کاپیز ہمارے پبلشر نے باہر رکھی ہے، سٹال لگایا ہے ان کا. اور اس کتاب کے پبلشر آپ کو معلوم ہوگا کہ کشمیر میں کتابوں کے اولین جو ناشر ہیں حاجی غلام محمد اینڈ سنز تاجران کتب کے نام سے جو مشہور ہیں، ان کی 6ٹھی نسل 6th جنریشن ان کی جو ہے آج بھی اس امانت کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور آج بھی وہ کتابیں شائع کرتے ہیں اور اہل تشنگان علم کی پیاس بجھاتے ہیں. ڈاکٹر مشتاق حیدر، ڈاکٹر کوثر رسول اور پروفیسر ناصر مرزا.
नवंबर 2022 में मुझे ये किताब मौसूल हुई थी, क्योंकि शोबे को ये दिसंबर में ही इसकी रस्मी रनुमाई अंजाम देनी थी, लेकिन कुछ आड़े कुछ मसाइल आ गए जिसकी वजह से आज ये रिलीज़ हो जाएगी, यहाँ इसकी रस्मी रनुमाई अंजाम दी जाएगी। किताब का उन्वान है ख्वाबों की कसक, मुसन्निफ डॉक्टर यूनुस। इस पर एक नज़र। मासिर कहानी गुलो बुलबुल हिजरो विसाल, हीरा रांझा इश्क व मोहब्बत, शराब व कबाब हुस्न व जमाल को हसार व बयाबां, हसीनों व महजबीनों की कहानी नहीं है, बल्कि आज की कहानी नई टेक्नोलॉजी, साइबर वर्ल्ड, वायरसेस, एटमी जंग, कल्चरल ब्लास्ट, टीआरपी, बिटकॉइन स्नैप और पोस्ट कॉलोनियलिज्म की कहानी है। इसलिए कहा जा सकता है कि उर्दू कहानी ने 20वीं सदी की दहलीज को पार करते हुए 21वीं सदी में कदम रखा है। वक्त बदलने के साथ साथ नई तब्दीली ने कहानी का चेहरा बहुत हद तक बदल दिया, जिसका बराह रास्त जम्मू कश्मीर के अफसाना निगारों ने भी कबूल किया है। यहाँ के अफसाना निगार अपने खून जिगर से इसकी आबियारी करते हैं, जिनमें डॉक्टर यूनुस भी एक नाम उभर कर सामने आ रहा है। डॉक्टर यूनुस ने अपनी अगली ज़िंदगी का आगाज़ कॉलेज से किया और कॉलेज के मैगज़ीन में इनकी तख्लीकियात शाया होती रहती थी। डॉक्टर यूनुस ने इसके बाद फिक्शन की दुनिया में कदम रखकर फिक्शन के जुल्फ सवारे। 2018 के बाद इनकी बेशतर कहानियाँ कश्मीर उज़्मा की जीनत बन चुकी हैं। फिर यही कहानियाँ किताबी शक्ल में ख्वाबों की कसक के अनवान से हाल ही में मंजर आम पर आ गई। ज़ेर नज़र डॉक्टर यूनुस के अफसानी मजमूआ ख्वाबों की कसक की बात की जाए तो मालूम होता है कि अफसाना निगार ने समाजी तहजीबी बदलाव, अज़दवाजी ताल्लुकात, सियासी गिरावट, माशी बदहाली और अखलाकी पस्ती, घरेलू मसाइल में दबी हुई ज़िंदगी की बात करते हैं। इस तरह की कई कहानियों में आला तबके के लोगों के मसाइल की नुमाइंदगी भी करते हैं। इनकी कहानियों में आज का दर्द और आज की उदासी देखने को मिलती है। वो जिन हालात और वाक़ात को अपनी कहानियों का मौजू बनाते हैं, इसमें इंसान हर तरह ज़ख्मी नज़र आता है। ख्वाबों की कसक डॉक्टर यूनुस की ताज़ा तसनीफ़ है, जो कि 20 कहानियों के साथ साथ 161 सफ़ात पर मुश्तमिल है। किताब का पहला अफसाना बदनसीब माँ, जिसमें रिश्ते का दर्दनाक अलमिया पेश किया गया है। ये कहानी तरक्की याफ्ता ज़िंदगी और इंसानी रिश्तों की बदलती हुई कदरों की अक्कासी करता है, जिसमें हफीज़ा बेगम और नूर मोहम्मद को किन मसाइब व मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि इन्हें ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में ये एहसास होता है कि अल्लाह के सिवा हमारा कोई सहारा नहीं है, अब नहीं कोई रिश्तेदार। मैयत उठाई गई, कब्र में उतारी गई, मिट्टी डाली गई, फिर मिट्टी से इन्हें ढक दिया गया। कब्र के पास मिट्टी में दर्द की सब शाख ठोक दी गई। गौरकर ने कब्र पर पानी का छिड़काव किया और दुआ के लिए हाथ उठा दी। तदफीन में मसरूफ लोगों ने भी हाथ झाड़े और दुआ में शामिल हो गए। यूं नूर मोहम्मद के घर की आखिरी निशानी की मिट्टी तले दब गई। जनाजे में शामिल किसी राहगीर ने मुझसे सवाल किया, ये कौन था? मैं इंसान की वक़ा और नफ्सियाती कशोकश को उजागर किया गया है। इस अफसाने में शाहीन अपने दोस्त डॉक्टर इकबाल को अपने पेशे की अजमत का एहसास दिलाते हैं। आपका पेशा आपको सुकून की जिंदगी फराहम कर सकता है। अगर तुम दौलत को अपना मकसद बनाकर इसी मरीज के साथ धोखाधड़ी करते हो या अपने फराइज से कहीं गैर जिम्मेदारी से काम लेते हो, तो तुम्हें कभी सुकून मैसर नहीं, तो पूरे समाज का माहौल दरहम भरम हो जाता है। अफसाना मैंने कश्मीर क्यों छोड़ा ऐसे ही समाज की कहानी है। डॉक्टर यूनुस ने ज़िंदगी के तल्ख हक़ाइक़ और ज़िंदगी की बाज़गश्त पर तवज्जो मरकूज़ की है। इन्होंने असली मसाइल को कुरेदने की कोशिश की है। नई नस्ल के फहम इदराक को समाजी निज़ाम के साथ हम आहंग करके इसे नया तख्लीकी रूप अता किया। इंसानी रंग व नस्ल, ज़ात पात, ज़बान और बदलते हुए समाजी निज़ाम को समझने और इसको आम फहम उसलूब के साथ कारी तक पहुँचाने की कामयाब कोशिश की है। अफसाना ख्वाबों की कसक का ये इक़्तिबास मुलाहिज़ा फरमाई। आरिफा ने खज़र मोहम्मद का बैग बाहर सहन में फेंक कर इनसे घर से निकलने के लिए कहा। खज़र मोहम्मद के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वो हार सा हो गया, सारा हौसला टूट गया। उसकी आंखों में आंसू उतर आए। इस अज़ियतनाक कैफियत में बैग सर पर उठाया और बेयार व मददगार निकल पड़ा। वो अपनी ज़िंदगी को कोस रहा था। उसने अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं किया, मगर इसके आउज़ खज़र को रसवाई मिल गई थी। खज़र मोहम्मद पशेमान था कि अब जाए तो कहाँ जाए। वक्त ने इसे अपाहिज बना दिया। अपनी बेटियों के यहाँ जाकर रहना इसे गवारा न था। इनके अपने मसाइल थे। वहाँ बोझ बनने से बेहतर है कि गाँव ही चला जाऊँ, मगर गाँव में भी लोग तरह तरह के सवाल पूछेंगे, वहाँ भी रुसवाई होगी। अनकोट। इसके अलावा डॉक्टर यूनुस के अफसानों में मैंने शेर देखा, इबरत खून की मेहंदी बाहर आई, मेरा मोहसिन तलाक और चरा घुस गया, सबसे बड़ा बेवकूफ़ तब्दीली में हार गया, अना
کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں موجود ہے. زن سے ہیں تصویر کائنات میں رنگ, ہمت مرداں مدد خدا انجام, اور یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے وغیرہ میں سماج کی طلب حقیقتوں کو ابھارنے کی کامیاب صحیح کی ہے. لیکن ڈاکٹر یونس کو طویل افسانے کی بنت پر بھی اتنی مضبوط گرفت نہیں ہے, جس کی وجہ سے کئی افسانے بنتے بنتے رہ گئے. عام فہم پلاٹوں کا انتخاب کیا گیا ہے. مقال میں رواں اور زبان کرداروں کے تہذیبی اور سماجی پس منظر کے مقام و مرتبہ کے مطابق ہیں. اسلوب میں روانی اور تازگی ہے. کتاب کی اتباعات بہت دیدہ زیب ہیں, لیکن پروف کی ایک دو غلطیاں بھی دیکھنے کو ملی. چھپائی اور کاغذ بہت عمدہ استعمال کیے گئے ہیں. کتاب کے ناشر کتاب محل سری نگر ہیں. امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی کتاب ادبی حلقوں میں مقبول ہوگی اور قارئین اسے اپنی آراء سے ضرور نوازیں گے. میں ڈاکٹر محمد یونس کو اس کتاب پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. شکریہ. سہیل سالم صاحب نے بہت ہی مختصر لیکن پرمغز تبصرہ کتاب پر آپ کی سماعت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور امید ہے کہ وہ اسی طرح مشق سخن جاری رکھیں گے. جی, ڈاکٹر صاحب کے والد گرامی یہاں تشریف فرما ہے, ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی ایوان صدارت. No, bro, ika. Kaya kat pulang, ika pulang. सर इधर देखिए. सर उसको थोड़ी सी Ini dokter Yunus semuanya. Yunus up. harus foto. Okay. ڈاکٹر محمد یونس ڈار صاحب کی بیگم بھی تشریف فرما ہے. ہم ان کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور حق بات یہی ہے کہ اگر ان کا ساتھ شامل حال نہ رہے تو کتاب کیا ایک صفحہ بھی جو ہے کرتاس اور قلم کے ساتھ انسان کا رشتہ تبھی قائم ہوتا ہے کہ جب ان کی اجازت ہو. میرے دوست یہاں ناظم نذیر صاحب تعمیل ارشاد سے تشریف فرما ہوئے ہیں. ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. دیر سے نظر آپ پر پڑی, اگر میں نے الطاف صاحب کہہ رہے تھے آپ سب سے پہلے تشریف فرما ہوئے تھے کہ آپ کا اس لیے ہم نے خصوصاً خیر مقدم کیا کہ ادبی محفل ہو اور آپ نہ آئے ایسا ہو نہیں سکتا ہے, اور پھر اخبار میں آپ اس طرح کے ایونٹس کو جو ہے ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں. اس محفل کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے پاس جیسا حکم کریں گے صدر شعبہ کہ وہ میزبان ہیں. آگے کا پروگرام یہ ہے کہ کچھ مہمانان گرامی جو ہے اپنے تاثرات بھی اس حوالے سے ہمارے سامنے رکھنا چاہیں گے, اور جب مہمانان گرامی اگر کوئی مہمان تاثر رکھنا چاہتا ہے تو بہت ہی مختصر ہو کہ ہماری محفل کے آج کے صدر ہمارے ڈاکٹر نثار احمد میر صاحب جو ہے وہ بہت انہوں نے مصروفیات ان کی رہتی ہے, یونیورسٹی کا سارا انتظام ان کے ذمہ ہے. ابھی ایک اور فنکشن میں بھی جانا ہے. سر جس وقت حکم کریں گے تو یہ اپنے صدارتی کلمات سے نوازیں گے. تو اگر جتنی دیر آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو ہمارے لیے خوش بختی اور ہمارے لیے باعث فخر ہوگا. میں یہ وقت یہ جو کچھ لمحے ہیں یہ ان کا بھرپور استعمال کرنا چاہوں گا. کئی نام ہیں جو میرے پاس آئے ہیں کہ وہ اس کتاب پر اپنی رائے یا اوورآل کتاب کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے. تو میں وہ چلے گئے. اچھا میٹنگ جی ٹھیک ہے, وہ تشریف لے چکے ہیں. میں ہمارے دوست اور ڈاکٹر الطاف انجم صاحب چونکہ افسانے کے ناقد بھی ہیں, میں ان سے ملتمس ہوں وہ اپنے تاثرات کا اظہار کریں, لیکن اس حق کے ساتھ کہ وہ
2-2.5 मिनट में अपनी बात खत्म करेंगे। शुक्रिया डॉक्टर मुश्ताक साहब, ऐवान सदार, मोअज़्ज़िज़ीन मजलिस, रिसर्च स्कॉलर्स, हमारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस डार साहब को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि ये उनकी पहली किताब है, अफ़सानवी किताब है। इनको भी और इनके अहल खाना ख़ासकर इनकी ज़ौजा मोहतरमा और उनके वालिदैन भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, इनको मुबारकबाद। लेकिन मैं चाहूँगा कि चूँकि इनका अदबी सफ़र भी शुरू हो रहा है तो इनका अदब का मामला है, बड़ा पुरखा रास्ता है, शनाख्त बनते बनते बनती है। अहमद मुश्ताक का शेर है, नए दीवानों को देखो तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखो तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे आए जब इस वीराने में। तो मैं ये ज़ाती तौर पर ख्वाहिश करता हूँ कि इनका जो अदबी सफ़र है ये कायम रहे और ये जिस तरह वादी के मुख्तलिफ अफसाना निगार इस वक्त मंजरनामे पर छाए हुए हैं, मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर हम दुआ करते हैं कि इनका जो अदबी सफ़र है वो खुशगवार गुजरे और हमारे जो मशाहिर हैं यहाँ पर उन्हीं के तरह, उन्हीं के नक्श कदम पर चलकर ये भी आगे बढ़ें। लेकिन एक बात ये भी हम सब जानते हैं, ख़ासकर जो अदब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ये कि जिस तरह हम एक शायर के बारे में कहते हैं कि अगर किसी को शेर कहना हो तो उसके लिए ये लाजिम है कि वो कम से कम असातिज़ा के हज़ारों शेर उसको अज़बर हो। वो आप अदब की दुनिया में आए हैं तो आपको फ़ौरन हाथों हाथ नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपको बहुत चलना है, बड़ा पुरखा रास्ता है। बकुल फैज़, हर एक मकामी उल्फत बड़ा ही दिलकश था, हर एक मकामी उल्फत बड़ा ही दिलकश था, मगर हम अहले मोहब्बत कशां कशां गुजरे। बहुत रखा है, लेकिन एक शख्स की राय बहुत अहम है और या अपनी जज्बात का इजहार बहुत अहम है। वो आज मुसन्निफ इस किताब के जो हैं उनके वालिद गिरामी कदर जनाब मास्टर मोहम्मद अकबर डार साहब, वो कुछ देर के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए और आज की या तो इस तकरीब के हवाले से या फिर किताब के हवाले से चंद एक बातें हाज़रीन के सामने रहे। जनाब मास्टर मोहम्मद अकबर डार जी, यूनिस साहब के हवाले से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल किताबिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्योंकि टाइम च कम क्या इशारात करबा अगर कुरान पाक की तिम आयात तह ब्रोट कन यथ मज यमनिस वाबस्तगी इल्मस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाजिल गसान इकरा पढ़ो, मगर बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, जिसने तख्लीक की, जिसने आपको समीअम बसीरा बना। कल आपको सवाल भी यही होगा, अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहु नजदैन, यही सवाल होंगे कल। ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों, अपने अफकार की दुनिया का सफर कर न सका, जिसने सूरज की शाहों को गिरफ्तार किया,
وہ اپنی زندگی کی شب تاریخ کو سحر کر نہ سکا. فارسی میں ایک مثال ہے. پرشن بہت خوبصورت زبان تھی. پدر را اصل بسیارس ولی پسر گرمی دارس. باپ کے پاس بہت شہد ہے لیکن بیٹا لینے کے لیے تیار نہیں. اس کا مزاج گرم ہے, اس کو شہد آتی نہیں. ان فی خلق السماوات والارض, یہ آسمان تو زمین پیدا کرنس من, واختلاف اللیل والنہار, رات کے بعد دن, دن کے بعد رات, یہ اختلاف, لآیات لأولی الالباب, عقل والوں کے لیے اس میں آیات ہیں, نشانیاں ہیں. میں موضوع کی طرف آتا ہوں. انسان چاہے ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, قلمکار بنے, شاعر بنے, تحریر یا تقریر, اس ساری تاغدہ میں انسان کو پہلے منزل معلوم ہونا چاہیے. کتنا دور ہے, کیسے سفر شروع کریں گے, اور مقصد کیا ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, جس اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساخت بہترین طور پر آپ کو سننے والا, بولنے والا بنایا. ایک جانور کی آنکھیں نہیں ہیں, ایک جانور کے کان نہیں ہیں. کل میں نے پہلے بھی کہا الم نجعل لہ عینین, یہ آنکھیں میں نے تم کو دی تھی, آپ نے کائنات کے راز ڈھونڈ نکالے, مگر اپنی زندگی کی شب تاریخ کو اصل میں انسان ایک مقصد کے لیے آیا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. ہم نے اس انسان کو پیدا کیا, پھر شعبے اور قبیلے بنائے صرف اس لحاظ سے تاکہ ایک دوسرے کا تعارف ہو جائے, ورنہ ان اکرمکم عند اللہ, بہترین انسان وہ ہے جو ایک دل رکھتا ہو, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. ڈاکٹر بھی اسی لیے, قلمکار بھی اسی لیے, شاعر بھی اسی لیے کام کرے, اور اس سوسائٹی کو صحیح ڈھنگ پر چلانے کے لیے جس کے پاس جتنا طاقت ہو. کوئی قلمکار ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, بس یہی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. میں زیادہ وقت نہیں لے لوں گا. جو دل رکھتے ہیں نا, دل, ایک تو کہتے ہیں شعوری انسان, دوسرے کو کہتے ہیں غیر شعوری انسان. غیر شعوری انسان کو قرآن نے بتایا کل انعام, یہ اس بھینس جیسا, بکری جیسا, گائے جیسا انسان ہے جو غیر شعوری, جو شعور سے کام نہ لے. کل انعام بل ہم اضل, بلکہ قرآن کہتا ہے کہ اس سے زیادہ بدتر ہے. دوسرا ہے شعوری انسان, جو اپنے شعور کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہو, جو ہمیشہ. آخر پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا. شعور کسے کہتے ہیں؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رئیس المحدثین، یعنی اگر محدثینوں کا رئیس، امیر المحدثین، یہ حج کے لیے جاتا تھا. اس کو بہت شوق تھا حج جانے کے لیے. ایک سال کیا، دوسرے سال بھی
जाते थे। रास्ते में ही निकलते निकलते ही उसने एक काफिला को देखा। काफिला वालों ने मरे हुए मुर्गियों को फेंका। जब उसने उनको फेंका, वहाँ से जो लोकल बस्ती थी, लोकल बस्ती में से एक लड़की आई और उसने इस चुपके इस मुर्गी को अपने दामन में छुपा लिया और घर ले गई। शऊर किसे कहते हैं? अब्दुल्ला बिन मुबारक ने ये वाक़ा जब देखा, वो उस लड़की के पीछे पीछे चला गया। जब वहाँ पहुँच गया तो उसको कहा कि अरे आप क्या ये कर दिए, कि मर्दार क्यों खाते हैं? उसने कहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं, कि हाँ हमारे घर में बेवा औरतें हैं और अयाल है, कोई कमाने वाला नहीं। अब्दुल्ला बिन मुबारक उसने खादिम को बुलाया, ओ खादिम इधर आओ, मैंने तो फरीज़ आज एक बार भी नहीं 10 बार किए हैं, लेकिन आज मेरा हज अकबर यही है, कितने दीनार हमें साथ है? उसने फरमाया कि 2000। अच्छा घर तक वापस कितना खर्चा लगेगा? उसने कहा 20 दिरहम। उसने कहा फौरन निकालो 1980 दिरहम, ये इस बेटी के हवाले कर दो। इसको कहते हैं शऊर। और यही अब्दुल्ला बिन मुबारक, ये आखिरी बात है अगर आप बर्दाश्त करेंगे, यही अब्दुल्ला बिन मुबारक जब बगदाद में दाखिल हुआ, बगदाद में आलिम थे, फाजिल थे, दर्दमंद थे, शऊरी इंसान थे। इसी दौरान हारून रशीद भी आ गया अपनी बेवी के साथ। बगदाद में जब दाखिल हो गया ना, तो हारून रशीद बीवी के साथ बैठा था। उसने बाहर बहुत शोर देखा। उसको कहा कि खादिम से कहा जरा देखो ये शोर क्या है। खादिम जब आया उसने कहा ये शोर है, यहाँ वक्त का एक बड़ा आलिम अब्दुल्ला बिन मुबारक आया है और अब्दुल्ला बिन मुबारक की जियारत के लिए लोग जमा हुए हैं। हारून रशीद ने कहा अच्छा मेरा किसी को मालूम नहीं? कहा नहीं। अच्छा शोर जो मैं सुनता हूँ ये शोर क्या है? खादिम ने कहा अब्दुल्ला बिन मुबारक आलिम, फाजिल, शऊरी इंसान, उसको छींक आ गई है। उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको छींक आती है उसको क्या हुक्म है? अल्हम्दुलिल्लाह। और जो सुनने वाला उसको क्या बोलना है? यरहमुकल्लाह। उसने खादिम ने कहा कि जब उसको छींक आ गई, उसने अब्दुल्ला बिन मुबारक ने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ से जो लोगों की तादाद आई थी उन्होंने पढ़ा यरहमुकल्लाह। ये इसी का शोर है। बीवी हारून रशीद से चुपके बोलती है, अरे बादशाह, मुझे लगता है आपसे ज्यादा अब्दुल्ला बिन मुबारक बादशाह है। ये दिलों का बादशाह है, दिलों का बादशाह है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करो बियां। बातों से हम इस नतीजे पर पहुँचे कि आपने अपने बेटे को, हमारे आज के मुसन्निफ को हमदर्दी का जो सबक पढ़ाया है उससे सरशार हैं वो। और हक बात यह है कि इन अफसानों में इंसानी हमदर्दी की को मलहूज़ नज़र रखा गया है। वक्त की तंग दामानी है, वरना और बातें भी हो सकती थी। 2 लोगों की राय और खुतबा हमें ज़रूर सुनना है। एक तो सैयद हुमायूं कैसर साहब कि जो हमारी वादी के नहीं बल्कि उर्दू दुनिया के एक अहम ब्रॉडकास्टर के तौर पर माने जाते हैं। मैं आपकी खिदमत में ये प्रेमचंद का कौल अर्ज़ करना चाहूँगा। जनाब आली की प्रेमचंद कहते हैं, कहने से ज़बान नहीं कटती, लिखने से हाथ कट जाते हैं। आज के मुसन्निफ ने अपने हाथ हमारे हवाले कर दिए हैं, अब ये अपने अल्फाज से पीछे नहीं हट सकते। इस सारे महफिल की जान हमारी आज के सदर महफिल हैं। हक बात यह है कि आप जी तो अभी रजिस्ट्रार साहब के हुक्म के तहत अगर हमने प्रोग्राम में बनाया था आपको कहीं जाना और रजिस्ट्रार साहब पहले खुदा फरमाएंगे, लेकिन आपके हुक्म के तहत
मैं सैयद हुमायूं कैसर साहब से मुल्तमिस हूँ बात आपके हवाले कर दी। हम कहते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग में बात निकल गई, वो वापस खींची नहीं जा सकती। निकल गई तो निकल गई। वहाँ 100 - 1 0 होता है, 99 नहीं होता है, क्योंकि मौका नहीं मिलता उसको वापस लाने का। तो मैं एक अदबी घर में पैदा हुआ, अदीब तो ना बन सका लेकिन अदब शनास ज़रूर बन गया, और बेअदब भी नहीं रहा शायद। और ये मैंने नहीं पढ़ा है इनका अफसाना या इनके अफसाने, कुछ इक़्तिबासात सुने, दिलचस्प हैं, अच्छे हैं, किताब भी बखूबी अच्छी होगी। लेकिन यहाँ बात हुई कि डॉक्टर हैं, लिखते हैं, इंग्लिश लिटरेचर देख लीजिए, शर्लॉक होम्स पढ़ते हैं, एजे क्रॉनिन क्या है, ये क्या थे, हमारे कॉनन डॉयल थे, एजे क्रॉनिन क्या थे डॉक्टर, ऐसी बात ही नहीं। डॉक्टरों में यह खासियत है कि वो अदब में भी आ जाते हैं। और यहाँ ताबी साहब हैं हमारे कश्मीर में, उन्हें 60 किताबें लिखी हैं मेरे ख्याल में, और उनकी किताबें जो हैं वो शायरी भी है, सूफियाना भी है और तिब की। यहाँ उनके गाने भी बहुत चलते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि जो डॉक्टर है उसका एक ही शोबा रहता है। मेरे ख्याल में इंजीनियर कम होंगे मिलेंगे आपको जो इतने लिखने वाले होंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं होंगे, क्योंकि इनका इंसान से वास्ता है, तो ये वो बात रहती है इनमें कि ये कम से कम इंसान की नब्ज़ ही नहीं पकड़ते हैं, उसकी सोच भी समझते हैं किसी हद तक, अगर क्लिनिक में ना बुलाएं। तो उसके अलावा एक और बात भी है कि ये जैसे इनके साथ एक अजीब सा रिश्ता है मेरा, जो कुछ अनोखा है। ये 2000 मेरे ख्याल में 16 की बात होगी, ये मेरे दफ्तर आते हैं 16-17, ये नहीं आते, एक लड़का आता है, एक नौजवान आता है मिठाई का डब्बा लेके मेरे ऑफिस, और मुझे कहता है कि ये मैं आपके लिए लाया। मैंने कहा मैं तो आपसे मिला नहीं पहले, आपको मुबारक है, मैं BMO या कुछ ऐसा ही बन गया हूँ, और इसमें मेडिकल अफसर बन गया, और इसमें आपका कंट्रीब्यूशन है। मैंने कहा मेरी तो मुलाकात ही नहीं हुई आपसे, मेरा कंट्रीब्यूशन कैसे? कहा मैं छठी से आपको सुनता हूँ, मुझे लगता है आपका भी कंट्रीब्यूशन है। ये इनकी बड़ाई है, मेरी नहीं। जिनने ये एक्नॉलेज किया कि ये छठी से मुझे सुनते थे, शायद कोई तब्दीली इनमें आई होगी, लेकिन जो इनने कमाया है वो अपने इल्म से कमाया, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। और मैंने इनको बहुत देखा है सोशल मीडिया पे, ये पहाड़ों में नज़र आते हैं, बकरवालों के साथ नज़र आते हैं, गुजर बस्तियों में नज़र आते हैं, लोगों के साथ बात करते हुए, इंटरव्यू लेते, उनके बारे में लिखते, कुछ एक ये कहते हैं आपके आवारा किस्म के इंसान है उस हिसाब से। तो मगर अब ये है कि शादी के बाद अगर यही करते रहे तो फिर आगे पता नतीजा क्या होगा, फिर ये आखिरी किताब होगी। तो मगर मामला ये है कि ये पसंद करते हैं नेचर में रहना, कुदरत में रहना, घूमना, लोगों से मिलना, और फिर उनके बाद जो उनसे बात करते हैं या उनके बारे में लिखते हैं वो बहुत दिलचस्प होता है, उसमें ये नज़र नहीं आते हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि जब हम यहाँ आके किसी के बारे में बात करते हैं तो अपनी बात करते हैं, बीच में उसका नाम लेते हैं। वैसे ही लोग लिखते किसी के बारे में तारीफ अपनी होती है, ये उन्हीं की बात करते हैं वहाँ, और मेरे ख्याल में वहाँ से इनके अफसाने जन्म लेते हैं, और फ्यूचर में और मुस्तकबिल में भी इनके अफसाने वहीं से जन्म लेंगे। और मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको कि आपने ये जसारत की, जैसे इनने कहा कि ये सफ़र कठिन है, क्योंकि ये एक शोबा है ऐसा, मैं बताऊँगा आपको, ये रेडियो में भी एक मामला था, मेरे आखिरी 2-3 मिनट आपसे लूँगा, कि वहाँ अगर कोई उर्दू में कोई चीज़ करता था ना अच्छी, जो उर्दू का बैकग्राउंड जिसका नहीं है, तो वहाँ अंदर से सारे आग बबूला होते थे, इसकी ये मजाल है, ये उर्दू में लिखेगा हमारे होते हुए, उनने खुद कभी कुछ नहीं लिखा, लेकिन ये नहीं लिख सकता है। तो आपको ये फेस करना होगा, क्योंकि इसमें इस सर्कल में दाखिला मुश्किल है, क्योंकि सर्कल के अंदर वाले इनसिक्योर हैं, आप नहीं हैं। थैंक यू। मोहतरम प्रोफेसर एजाज साहब, हमारी शोबे उर्दू के हेड और लिंग्विस्टिक्स के हेड, मोहतरम हुमायूं कैसर साहब, सलीम साहब, खुर्शीद साहब, इस महफिल के सितारे मोहतरम डॉक्टर यूनुस साहब, इनके वालिद साहब मोहतरम डार साहब, हमारे स्टूडेंट स्कॉलर्स और हमारे उस्ताद किराम जो यहाँ तशरीफ़ आवर हैं। मेरी जैसे एजाज साहब ने डिफ्रेंशिएट किया
लैंग्वेजेस को उन्होंने कहा कि अदबी, गैर अदबी, और मैं समझता हूँ इस महफिल में जब मैं बोलूँगा तो एक बेअदबी ही होगी, तो मैं उस ब्रैकेट में शायद बाहर आऊँगा अदबी और गैर अदबी से। मगर मैं आपसे माजरत चाहता हूँ अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए। उर्दू तो मेरी वैसे भी कमज़ोर है कि हमने तो उर्दू ज़्यादा पढ़ी नहीं, मगर अब यूनिवर्सिटी में रह के थोड़ी थोड़ी तो सीखी है। जैसे हमारे चाहे डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू से या हमारी जो महफिलें होती हैं ज़्यादातर अंग्रेज़ी में ही बात होती है, मगर फिर भी मैं जसारत करता हूँ यहाँ कहने की कुछ। पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू को। जैसे हुमायूं साहब ने कहा ऑलरेडी कि किसी को किसी गैर उर्दू या जो उर्दू से ताल्लुक़ न रखते हुए उनको ओन करना, उनको अपने ज़मर में लाना, तो ये उनका बड़ापन ही है। तो जैसे उर्दू वालों ने जगह दी है डॉक्टर यूनुस साहब को, ये मैं समझता हूँ कि उर्दू डिपार्टमेंट का बड़ापन है कि आज हम देखते हैं कि ये इजरा हो रहा है। एजाज साहब तो काफ़ी मुद्दत से कह रहे थे कि एक इजरा करना है, किताब की रस्म रोनुमाई करनी है, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हो गई। और इस महफिल में जो मुझे लगता है कि जैसे एजाज साहब की सिर्फ तो हमने किताब देखी और किताब की रस्नुमाई की, मगर जो उनके वालिद साहब के तासुरात हमने सुने वो मुझे अपने बचपन के उस्तादों की याद दिला रही हैं कि जैसे उन्होंने अपने अल्फाज चाहे मजहबी लिहाज से, चाहे समाजी लिहाज से, चाहे इल्म के लिहाज से बयान की, वो काबिल फ़ख्र हैं। और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उनके फर्जंद अर्जुमंद जो हैं उन्होंने आज ये ख्वाबों की कसक जो यहाँ किताब रहनुमा इजरा हुई इस महफिल में, मैं उनके ज़्यादा मुबारकबाद में उनके वालिद साहब को ही पेश करता हूँ। और जो उनकी शरीक हयात हैं, जैसा किसी ने कहा कि वो एक लफ्ज़ भी नहीं लिख पाते, अगर उनका साथ नहीं होता तो वो भी इस काम के बराबर हकदार हैं। बहरहाल जब हम कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो आप तो यहाँ भी कुछ पढ़े यहीं से हुए हैं, कुछ हमारे मेहमान हैं। तो हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू है ये तो एक पुराना डिपार्टमेंट है जिसमें बहुत सारे उस्ताद मोहतरम ऐसे रहे हैं जिन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है इस अदब में, उर्दू अदब में। और आज भी जो हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं या रिसर्च पर काम करा रहे हैं, उसका कंट्रीब्यूशन तो हमारे वो कहीं जिसको हम कहते हैं छुपा हुआ नहीं है। तो चाहे उर्दू का डिपार्टमेंट हो, इसके बाद हमारे और भी कुछ डिपार्टमेंट से जो हमारा डिपार्टमेंट जो हमारा आर्ट्स फैकल्टी है जिसमें लिंग्विस्टिक्स, जिसमें एजाज साहब आज हैं, इसके बाद हमारे इकबाल इंस्टीट्यूट भी है, इसके अलावा हमारा डिस्टेंस एजुकेशन भी है जो यहाँ काम करता है उर्दू ज़बान पर। मगर मैं समझता हूँ कि इसके आज तो हम चाहे अल्ताफ़ अंजुम साहब यहाँ हैं, वो भी काम करते हैं डिस्टेंस के हिसाब से यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। तो एज सच क्योंकि आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, आज अभी हमारी एक फंक्शन चल रही है और हमारे यहाँ कल गवर्नर साहब को आना है कश्मीर यूनिवर्सिटी, इसलिए थोड़ा बहुत मैं बिज़ी हूँ। तो हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी में आपको पता ही है कि जो आजकल लिटरेचर का ज़माना है, जैसे हम कह रहे थे कि नाउ टेक्नोलॉजी हैज़ ओवरशैडोड द प्रिंट मीडिया, मगर फिर भी हमारी जो लाइब्रेरी है, जो खासकर सेंट्रल लाइब्रेरी है हमारी यूनिवर्सिटी की, उसमें आपको पता है कि तकरीबन 7 लाख के आसपास हमारी किताबें हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। इसके बाद हमारी हर डिपार्टमेंट में अपनी अपनी लाइब्रेरी है, लेकिन जैसे ऑनरेबल वाइस चांसलर के डायरेक्शन के हिसाब से हमारा जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उसको हमने ओपन रखा है। एक तो हमने 24/7 ओपन रखा है उसके ऑर्डर्स के हिसाब से। और हमारे बच्चे, आज हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में बच्चे आए
यूनिवर्सिटी में पढ़े। इससे पहले हमने एक ओपन रखा था सब बच्चों को यहाँ आने के लिए, क्योंकि जब कोविड हुआ उसमें थोड़े बहुत हालात ऐसे नहीं थे कि हम एन मास यहाँ लोगों को छोड़े। उसके बाद थोड़ी बहुत हमने कुछ रुकावट की उन बच्चों को यहाँ आने में, मगर फिर भी जिनकी हमें ज़रूरत लगती है, जिनको पढ़ना है, चाहे डॉक्टर्स है, चाहे इंजीनियर्स हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी में है या चाहे और किसी शोबे में, जिनको लगता है एक एग्ज़ाम होता है उनका फॉर्म, अगर लगता है उनको ज़रूरत है यूनिवर्सिटी में आने की, फिर भी हम उनको छोड़ते हैं। इसके अलावा हम जो अपने बच्चे हैं यूनिवर्सिटी के, उनको भी 24/7 फैसिलिटी अवेलेबल होती है। इसके बाद हमारा सेंट्रल लाइब्रेरी जो है वो ज़्यादा अभी हम देर तक नहीं खोलते हैं, मगर मुझे लगता है कि 7-8 बजे तक तो वो खुली रहती है सिर्फ पढ़ने के लिए। और आपको ये भी मालूम होगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक पुराने जो रिसर्च ना जो बड़े कीमती रिसाले थे, जिनको हम बैक फाइल्स के नाम से जाना जाता था हमारी यूनिवर्सिटी में, हमायूं साहब को शायद मालूम होगा, वो हमारा अपना नहीं असासा था, वो स्टेट गवर्नमेंट का असासा था। यहाँ अभी स्टेट गवर्नमेंट ने, क्योंकि SPM लाइब्रेरी अब बन गई लाल चौक में, तो उन्होंने वो वापस लिया। मगर फिर भी मैंने पर्सनली उनसे क्योंकि उन्होंने एक सॉफ्ट कॉपी उस सब की बनाई थी, तो हमने वो उनसे एक सॉफ्ट कॉपी भी ली ताकि हम यहाँ बच्चों को वहाँ ना जाना पड़े, यहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी में ही बाकी पड़े। हमने जो हमारे इससे पहले भी हमारे वाइस चांसलर साहब थे, उनकी डायरेक्शन के हिसाब से, क्योंकि हालांकि आई डोंट सी इट एज अ वाइब्रेंट सेक्शन नाउ, वाइब्रेंट यूनिट रादर, हमने एक रखा था, हमारा एक अशाई कॉर्नर हुआ था, जो हमारे अशाई साहब यहाँ रजिस्ट्रार रहे हैं पुराने, तो उन्होंने एक कंट्रीब्यूशन उनकी फैमिली ने दी थी, एक अशाई फ्लोर हमने बनाया था, उसमें एक लाइब्रेरी भी हमने डेवलप की थी। मगर उसी अशाई कॉर्नर पर हमने एक क्रिएट की थी एक स्पेस, हमारे जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं या कोई और भी जो अदब या लिटरेचर या बाकी रिसर्च से जो उस पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उनके लिए हमने एक कॉर्नर, फ्रंट कॉर्नर, जो अगर देखें तो सबसे खूबसूरत जगह है वो हमारी यूनिवर्सिटी की। अगर इकबाल लाइब्रेरी का आप देखें, जहाँ वो स्क्रीन, जहाँ वो एक TV लगा हुआ है, सिर्फ उसी के साइड में हमने एक चैम्बर क्रिएट किया था ताकि जो हमारे रिटायर्ड लोग हैं वो आके वहाँ पढ़े। तो वहाँ एक खूबसूरत जगह हमने बनाई, टेबल्स भी बड़ी खूबसूरत हैं, कुर्सियाँ भी बड़ी खूबसूरत हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली मैं कभी कभी वहाँ जाता हूँ, मगर वहाँ लोगों का फुकदान ही हम समझते कि रहता है, वहाँ लोग कम आते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से कि ताकि हम सपोर्ट करें, चाहे लाइब्रेरीज़ का सपोर्ट करें, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन या प्रिंट के हिसाब से जितना भी हमसे हो सके वो हम कोशिश करते हैं। अपनी लाइब्रेरीज़ को, जितनी भी लाइब्रेरी, चाहे डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी है चाहे सेंट्रल लाइब्रेरी है, उनको एक ख़जाना, किताबों का ख़जाना बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है इंशाल्लाह लोग पढ़ें भी, और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे रिसर्चर्स हैं, हमारे आलिम हैं, वो भी लोगों से कहें कि वो पढ़ें, खासकर जो उर्दू ज़बान है। उर्दू ज़बान हमारी आलमोस्ट इट इज़ ए मदर टंग, जैसे हम कश्मीरी तो हम आलमोस्ट भूल ही गए, चाहे घरों में चाहे बाहर। तो मुझे लगता है कि जैसे डॉक्टर यूनिस साहब की आज ये किताब इजरा हुई, इससे पहले मैंने एक दो बार मैं बेसिकली त्राल से हूँ, हमारे एक फारूक साहब हैं, वो ब्यूरोक्रेसी में थे, शायद अभी रिटायर्ड हो गए। उन्होंने बड़ी किताबें, वो असल में है तो एग्रीकल्चर साइंसेस के, तो उन्होंने बड़ी किताबें लिखी है, अपनी नहीं लिखी है बल्कि उन्होंने एक ट्रांसलेशन किया है, बड़ी जो साइंस की बुक्स हैं, चाहे बॉटनी की, चाहे हार्टिकल्चर की, चाहे फ्लोरिकल्चर की, उन्होंने ट्रांसलेट किया है उनको, एक उर्दू और एक उर्दू में भी किया और कश्मीरी में भी खास कर किया उन्होंने ट्रांसलेट उन किताबों को। तो मुझे उम्मीद है जैसे आज की जो हम देख रहे थे, आज की जो इजरा हुई किताब है डॉक्टर यूनिस साहब की, हम देख रहे हैं कि समाज में बड़ा दुख होता है जब हम अपना समाज या बाहर का समाज देखते हैं। जो जो उन्होंने वहाँ लिखा है अपने मजमुआ में,
تو چاہے ماں کا تذکرہ کیا ہے یا باقی سوشل ایولز کا تذکرہ کیا ہے، وہ بڑا ضروری ہے ہمارے لیے. میں کچھ سال پہلے ایک ٹائمز آف انڈیا میں ایک فرنٹ پیج سٹوری تھی کہ ایک فیملی تھی دلی کی، ماں دلی میں تھی، بچے یو ایس میں تھے. ماں کیسی ہو، کہاں ہو، تو بیچ میں وہ ماں ان کی کبھی کبھی تیرتھ یاترا پر جاتی تھی، تو ان دنوں اس کے ساتھ فون پر رابطہ نہیں کر پاتے تھے. کچھ ٹائم ہو گیا، وہ ان کو فون کرتے رہے، انہوں نے سوچا کہ فون نہیں اٹھا رہی ہے تو تیرتھ یاترا پر گئی. جب انہوں نے فون کافی دن تک نہیں اٹھایا تو انہوں نے پولیس اسٹیشن، وہاں سے یو ایس سے پولیس اسٹیشن فون کیا. پولیس اسٹیشن گیا، گھر توڑا، گھر کے اندر دیکھا تو ایک بوسیدہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا. تو میں کبھی کبھی سوچ رہا تھا کہ یہ جو ہماری میٹروپولیٹن سٹیز ہیں، دلی ہے، باقی اسٹیٹ جو ہے ان میں یہ حالات ہو گئے. شاید کشمیر میں ابھی یہ نہیں ہوگی. یو ایس میں تھی، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی اور بچے یو ایس میں تھے. سیم ہوا کہ انہوں نے فون کسی کو کیا کہ ہمارے گھر ذرا نظر مارے. تو جب انہوں نے گھر نظر ماری، وہاں ان کے والد صاحب کی انتقال آلریڈی ہو گیا تھا. تو یہ اب یہ ایک حقیقت بن گئی ہے آلموسٹ سماج میں. اسی طرح سے ابھی ڈاکٹر جو ہمارے سائیکیٹرسٹ ہیں، مقبول صاحب، ابھی ہم نے کچھ دن پہلے ایک سیمینار تھا، اس میں دیکھا ہم نے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ 70,000 بچے جو صرف کشمیر میں آج کل ڈرگ ابیوزرس ہیں کشمیر میں صرف. تو اسی طرح سے بہت سارے جو سوشل ایولز ہیں وہ ہماری سوسائٹی میں آ گئی ہیں. مجھے امید ہے کہ جیسے انہوں نے لکھا ہے تو، مگر میری ریکویسٹ ایک ہے کہ تھوڑا بہت حالات تو ہے، مگر میں سوچتا ہوں کبھی ہم انہی افسانوں میں کبھی ایک ایسا سکسیس سٹوری بھی ڈالیں تاکہ جو ایک امید کی کرن پڑھنے والے کو آئے کہ ابھی سماج میں شاید کہیں ایسی ایک کرن ہے جو سماج کو بچا سکتی ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں ایک بار پھر خیر مقدم سب کا، اور میں شکر گزار ہوں اعجاز صاحب کا کہ انہوں نے مجھے آنے کا موقع دیا. اپنے اختتامی مرحلے پر پہنچ رہی ہے. جی، اس محفل کا اگر دولہا کہا جائے تو ڈاکٹر محمد یونس صاحب ہی ہیں، لیکن ڈاکٹر محمد یونس صاحب آج 11 بجے کے آس پاس شعبہ اردو میں نے دیکھا کہ بنفس نفیس موجود ہے اور ایک میزبان کے جو فرائض ہیں وہ نبھا رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ پانی کی بوتلوں کا انتظام ہو، یہاں جو حاضرین تشریف فرما ہو ان کے لیے چائے یا قہوے کا انتظام ہو. یعنی جو آج کا یہ دھولا ہمارا ہے وہ ساتھ میں میزبان بھی ہے. ہم نے بھی جس طرح انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی، ہم نے بھی اس موقع کو غنیمت جانا. ہم نے کہا صاحب آپ اپنی رائے کا بھی اظہار کریں گے، مہمانان گرامی کا شکریہ بھی آپ خود ادا کریں گے. جناب ڈاکٹر محمد یونس صاحب. السلام علیکم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سبھی مہمانان کا جو آج یہاں پہ آئے تھے، اور میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میں آج ان کو بھی دیکھ رہا ہوں جن نے مجھے لکھنا سکھایا، بالکل ہاتھ پکڑ کر لکھنا سکھایا. اور میں بہت ہی خوش ہوں آج، بہت ہی زیادہ ایموشنل بھی ہوں، کیونکہ ایک یقیناً ایک بہت بڑا ایک واقعہ ہے میری زندگی کا کہ یہ میری ایک جو کتاب ہے میں نے لکھی تھی تو آج یہ یہاں پہ شاید یہ اجرا ہو گئی. تو میں اکثر میں جب جاتا ہوں کہیں تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ تو ڈاکٹر ہیں تو آپ کیوں لکھتے ہیں، یعنی کہ ان کو لگتا ہے کہ جو ڈاکٹر ہے یہ اپنا کام کیوں نہیں کر رہا ہے، یہ ادھر کیوں آ رہا ہے یا لکھنے کی طرف وغیرہ. تو میں ان کو ایک جواب دیتا ہوں. جب میں اس میں آیا، پریکٹس میں آیا، چونکہ میں MBBS کر رہا تھا تو میڈیکل کالج میں تھا، تو میڈیکل کالج میں مجھے ایکسپوجر اتنا نہیں تھا باہر کی دنیا کا، سماج کا مجھے اتنا ایکسپوجر نہیں تھا. لیکن جب میں بالکل ایک میڈیکل آفیسر تعینات ہوا اور اس کے بعد میں نے پیشنٹس دیکھنے شروع کیے OPDs میں، تو مجھے لگا کہ یہ جو درد ہے، درد بہت ہے ہماری اس دنیا میں. مجھے پہلے لگا تھا شاید زندگی ایک مستی کا نام ہے کہ انسان اپنی خوشی کا خیال رکھے، باقی دنیا
के बारे में फिक्रमंद ना हो, लेकिन जब मैंने ओपीडीज में पेशेंट्स की पेन देखी, दर्द देखा, तो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब या तो मेरा ये दर्द है इसका इजाला करो, या कोई जहरीला इंजेक्शन दे दो और मुझे ख़त्म करो, मतलब ऐसे भी। तो उस वक्त एक डॉक्टर के दिल पे क्या गुजरती है। तो उसके बाद मैंने इस दर्द को कलम के ज़रिए लिखना शुरू किया। तो इसी तरह जब मुझे लोग कहते हैं कि आप क्यों लिखते हैं, तो मैं कहता हूं कि जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी सिचुएशंस का खेल है, कि आप किस सिचुएशन में हो। ये नहीं किसी सिचुएशन में मैं डॉक्टर हूं, किसी सिचुएशन में घर में मुझे मैनेजमेंट आनी चाहिए कि घर कैसे चलाना है। तो ज़िंदगी जो है ये सिचुएशंस का खेल है। तो इसमें मुझे गुलिस्तान बोस्तान का एक किस्सा याद आता है कि एक बोटमैन जा रहे थे और एक मौलवी साहब जा रहे थे एक किश्ती में। तो इस मौलवी साहब ने अपना इल्म जाहिर करने के लिए इस बोटमैन से कहा कि क्या आपको बुखारी शरीफ आपने पढ़ी है? तो उस बोटमैन ने कहा मैंने नहीं पढ़ी है। इसने कहा आपने अबू दाऊद पढ़ी? इसने कहा मैंने नहीं पढ़ी। कहा आपने क्या किया? आपने अपनी जिंदगी जाया की है। लेकिन जब आगे चले तो समंदर में तूफान आ गया। तो अब इस बोटमैन ने इस मुल्ला से कुछ, क्या मौलवी साहब आपको तैरना आता है? इसने बोला नहीं। बोला आपने क्या किया? आपने अपनी जिंदगी जाया की है। तो इसी तरह मुझे अल्लामा इकबाल ने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है अपनी ज़िंदगी में। अगर मैं आप बात करूं तो अल्लामा कहते हैं कि तू अभी रहगुज़र में है, कैदे मकाम से गुज़र, मिस्र हिजाज से गुज़र, फारस और शाम से गुज़र। फिर कहते हैं कि जिसका अमल हो बेगर्ज उसकी जजा कुछ और है, खूरो खियाम से गुज़र, बादो जाम से गुज़र। तो इसी तरह में जब मैंने बारी जिब्रील में ये एक नज़म पढ़ी कि अल्लामा कहते हैं कि उसने एक फलसफी, मिस्र का एक फलसफी था अबू आला मौरी, अल्लामा ने उस पर एक नज़म लिखी। तो मैं अल्लामा को कहा गया कि आपने इस पे नज़म क्यों लिखी? क्योंकि एक एथीस्ट है, आप तो खुदा को मानने वाले, आपने एक एथीस्ट पे नज़म लिखी। तो अल्लामा ने कहा कि ये जो इंसान था इसके पास दो खुसूसियात थी। पहली ये कि ये कहता था अबू आला मौरी कि जब इंसान हंसता है तो ये उसके बेवकूफ़ होने की दलील है, क्योंकि अगर इंसान को पता चलेगा कि आने वाला वक्त किस तरह मुझे शीशे की तरह चकनाचूर करेगा तो इंसान कभी हंसेगा नहीं बल्कि रोएगा। सेकंड इसका पॉइंट था कि ये कहता था कि दुनिया में अगर कोई जालिम है जिसने मुझ पे जुल्म किया वो मेरा वालिद है, क्योंकि उसने मुझे जन्म दे के इस जिंदगी में फंसाया। तो अल्लामा को ये चीज़ें बहुत पसंद आई। तो अल्लामा ने फिर बाली जिब्रील में इस पर एक नज़म लिखी। अल्लामा ऐसे स्टार्ट करते हैं नज़म, कहते हैं कभी गोश्त न खाता था मौरी, फल फूल पे करता था हमेशा गुजर औकात। ये जो मौरी एक कभी गोश्त नहीं खाता था, ये फल फूल पे ही गुजर औकात करता था। एक दोस्त ने भुना हुआ तीतर जो इसे भेजा, शायद कि ये शातिर इसी तरकीब से हो मात। एक दोस्त ने क्या किया, एक भुना हुआ तीतर इसके सामने रखा ताकि ये इस शातिर को मैं ऐसे ही फंसाऊं। लेकिन इसने ये जो फलसफी था, जो वाला मौरी था, इसने इस तीतर की जानिब कहा जो था ना प्लेट में ग्रिल किया हुआ था। इसने कहा कि ए मुर्गी के बेचारा जरा इतना बता तू तेरी को खता क्या थी है जिसकी ये मकाफात, अफसोस सद अफसोस की शाहीन न बना। तो अगर तू शाहीन बना होता, अगर तूने जिंदगी में स्ट्रगल की होती, देखे न तेरी आंख ने फितरत के इशारे। और फिर लास्ट में अल्लामा एक आफा की पैगाम देते हैं जो हम सबको जिंदगी में याद रखना चाहिए। अल्लामा फरमाते हैं कि तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर के वफाजात। कहते हैं कि जिसने तकदीर लिखा, जिसने यूनिवर्स बनाया, उसने एक कानून रखा कि जो भी दुनिया में कमज़ोर रहेगा उसकी एक ही सज़ा है कि इसको बेवक्त मौत आती है, उसको कोई भी आता है कुचल देता है। तो ये है कि मैंने अल्लामा इकबाल की या उर्दू लिटरेचर से मैंने ये सीखा कि इंसान को दिल जो है, इसका दिल कभी मुर्दा नहीं होना चाहिए बल्कि इसका दिल जिंदा होना चाहिए। वही जो अबुल कलाम आज़ाद ने उस मशहूर तकरीर में कहा था जब उसने खिताब किया था जामिया मस्जिद दिल्ली में, जब मुसलमान हिजरत करके जा रहे थे यहाँ से, तो उनने मुसलमानों से कहा था कि बेअमली की जिंदगी तरक कर लो। 3 चीजें बोली थी, बेअमली की जिंदगी तरक कर लो, शक से अपना हाथ उठा लो और तज़ज्जुब का शिकार न हो। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि 3 दार की तलवार है और उस 2 दार की तलवार से कहीं ज्यादा बेहतर है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में मेहनत करनी चाहिए। इंसान को अपनी ज़िंदगी में ये जो अपना गोल है ये काफ़ी वसी होना चाहिए। हमें लगता है शायद हम किसी एक सिचुएशन में है, किसी एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, शायद हमें यही सब्जेक्ट काम आएगा। लेकिन ज़िंदगी में जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट सिचुएशंस। डिफरेंट सिचुएशंस में आपको इस लाइफ को फेस करना होता है, कभी एक बाप बनकर, कभी एक भाई बनकर, कभी एक लीडर बनकर। तो मैं यही चाहूँगा कि हमें शाहीनी खसाइल पैदा हो। तो लास्ट में मैं अपनी इस तकरीर को समेटना चाहूँगा कुछ अशार से कि ख्वाहिश से नहीं गिरते फल जोली में। अगर हम ख्वाहिश करेंगे ना कि इस दरख्त पे जो फल है मेरी जोली में गिरने चाहे, नहीं गिरते हैं। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल जोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा।
कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया तो खुद ही जलाना होगा। शुक्रिया। अब बात यह है कि फिर ये मेरे सर पर उन्होंने वो डाल के चले गए कि वो अपनी जोश खिताबत में शुक्रिया अदा करना भूल गए। डॉक्टर शहजादा सलीम साहब भी तशरीफ़ फरमा है कि इन महफिलों की जान होते हैं। यूनिवर्सिटी महफिलों का एक बड़ा अलग सा मामला रहता है। आप सभी यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील है या फिर यूनिवर्सिटी से वाबस्ता, कि जब महफिल ख़त्म होती है उसके बाद छोटी छोटी महफिलें जो है वो बर्पा होती है। इस किताब पर बहुत बात होगी। ये अफसाने जो है अफसाने हैं भी नहीं कि यहाँ नाक़दीन भी बैठे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि किताब है और इस पर बात हुई। किताब पर जब बात हो तो ये किताब की कामयाबी की दलील है। अलबत्ता इसकी हैयत, इसके मौज़ूआत पर ज़रूर बात होगी। आइंदा के लिए एक लाहे अमल तय होगा। सभी मेहमान नानी ग्रामी जो यहाँ तशरीफ़ फरमा रहे, हमारे जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल के से भी जनाब हांजुरा साहब तशरीफ़ फरमाते। हम चाहते थे कि आप आकर कुछ ज़रूर फरमाएँ, लेकिन वक्त की तंग दामानी देखिए कि हम जो है इस फ़र्ज से अदबरा न हो पाए। सभी मेहमानान गिरामी कदर का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ डिस्टेंस एजुकेशन के डायरेक्टर प्रोफेसर शौकत अहमद शाह साहब का शुक्रिया, डॉक्टर अल्ताफ़ अंजुम साहब का शुक्रिया कि उन्होंने यह हॉल हमें फ़राहम किया कि अपने हॉल में हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो कम पड़ जाता। इसी तरह दीगर जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा सभी हाज़रीन हैं, आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे यहाँ टेक्निकल स्टाफ जो डिस्टेंस एजुकेशन का है, जिन्होंने पूरा वक्त साथ दिया। अगर ये माइक बैठ जाता तो मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँचती। इसी और हमारे तलबा व तालिबात, आप सभी का शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस डार साहब का भी शुक्रिया और उनके अहले खाना, उनके वालिद साहब, उनकी बेगम का शुक्रिया कि बेगम ने उन्हें बेगम जब कर दिया तभी वो हमारे गमों को अल्फाज का लिबास दा पहना सके। तो आप सभी का फर्दन शुक्रिया। अगर हमारी जो इस महफिल को कंडक्ट करने में कोताहियाँ रही होंगी उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह दीगर शोबों से लोग किताबें लिखे और उर्दू डिपार्टमेंट उन किताबों की रस्म इजरा का हक अदा करता रहे। लेकिन शर्त यह है कि आप वहाँ से आएँ, हमारे दरवाजे आप सभी के लिए खुले हैं। आप सभी का शुक्रिया और ख़ास तौर पर मीडिया से वाबस्ता अफराद का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। महफिल अपने इख्तिताम को पहुँचती है। आप सभी अल्लाह हाफिज़। आप सभी सर या अभी सर को देंगे पोस्ट